Right. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to Project Management. The subject name is the Project Management and Economics MGT 316. Today is the first lecture. As I told you, the name of the subject is Project Management and Economics. My name is, this is the first interaction with you, so I am going to introduce myself. Name is Shayad, most of the people or most of the students knows my name, Engineer Mushtaq Ahmed Khokhar. Recently, last year, I did my complete master in education planning management from Allama Iqbal Open University, MBA executive in management from 2018 in from Virtual University, Pakistan. 2009, I completed MSc in engineering management from UT Texla, and I did my basic engineering, mechanical engineering from UT Lahore in 2000. This is my introduction. I have around 15-year industry experience, and the last 5 year I am attached with Swedish College of Engineering and Technology. Now the class introduction, every person should send these type information directly on my WhatsApp number. Don't send in the group. Individually हर बच्चा मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड करे. The student name, father name, your roll number, WhatsApp number, email and district, रहीम यार खान whatever. अगर कोई सादकाबाद में रह रहा है, if someone is living in खानपुर और लियाकतपुर, don't write सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर. Just mention only district name where you are belong to. So every student send all introductory data on my WhatsApp number. This CR of the class ensure by about this data and also inform to those students who are absent in the today's lecture. Okay, ji. Okay, sir. Right. I have already ordered to CR to make a class WhatsApp group. The name of the group is Project Management Economics 1923. I think he made yesterday, or most of the student has enrolled it, but limited 1 to 2 or 3 students are left. So we are waiting for them when they will join it. This is the sessional marks criteria as mentioned in the weekly lecture plan, which I have already sent in the group. The first quiz will be conducted on 14th May. Second quiz will be conducted on 16th June, or the third quiz will be conducted on the 9th July of the 2021. So there will be around 2 assignments. 5 marks is the project assignment, and 3 there will be quizzes. This is the total sessional 30 marks criteria, right? 3 quizzes 15 marks, 2 assignments 10 marks, and project report, which I will give you around after 4 weeks. Everybody should mute, please. Zishan Ali. मेरी आवाज किसी को आ भी रही है कि नहीं आ रही है? जिशान अली किधर है? Yes, sir. सर आपकी आवाज आ रही है सर. Yes, sir. सर आ रही है आपकी आवाज. आ रही है सर, आवाज आ रही है. बस ठीक है. Everybody should mute to your mic, please. सर ये जिशान अली नहीं है सर, ये आरिफ मसूद का माइक ऑन था. ये जिशान अली का माइक नहीं ऑन था. ये तो मेरे पास जो रेड कलर का लिंक आ रहा है ना, उसमें पर अगर if anybody wants to speak something, unmute your mic and speak it at any time. But during the lecture, please should mute off your mic, please.
Yes, this is the right. Everybody should send information as per I told you in my directly WhatsApp number. Student name, once again I repeat, the student name, father name, roll number, WhatsApp number, yours WhatsApp number, student's WhatsApp number, and email, and finally your district. Okay, I have discussed about sessional marks criteria. Now the subject is going to be started. The name of the subject is Project Management and Engineering Economics. So what is the objectives of this subject? The awareness of the importance of project management in project of any size. The project of the size starts from the 5 minutes up to 5 year up to 5 centuries. प्रोजेक्ट किसी भी टाइम लिमिट का हो सकता है. इफ सपोज फादर सेज गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग दीज आइटम्स एंड यू गो टू द मार्केट, take all items written on the paper and come back to your home. So this project is completed by you in within the 10 minutes. This is also called a project. If you want to build a 100-meter height building, it should be around complete 3 to 4 years. That will also be called a project. प्रोजेक्ट की कोई उम्र नहीं, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, एक साल का, 10 साल का, 25 साल का, कोई भी प्रोजेक्ट प्लान किया जा सकता है. ठीक है जी. बॉस 2 दिन की एक इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन इंस्टॉल करनी है एंड दे टारगेट यू कि प्लीज इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ मशीन विद इन 2 days या विद इन 2 weeks. So that would be a project for you, and how you will handle it we will just discuss on the this type of subject. आप इस सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, किस किस्म के काम को कौन कौन सी प्रिकॉशन मेजरमेंट्स हैं, how to manage it, how to handle it, how to work it on this upcoming project. We will just discuss on this subject. तो अवेयरनेस कि अच्छा प्रोजेक्ट मैनेज कर लें. जैसे वेरी सिंपल, अगर ऑरेंज लाइन का प्लान था कि इसको 6 माह में कंप्लीट करना है या 3 सालों में कंप्लीट करना है, तो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 year प्लान. मेट्रो बस सर्विस जब शहबाज शरीफ ने स्टार्ट की, ही अनाउंस्ड कि जी वी विल कंप्लीट, द पंजाब गवर्नमेंट विल कंप्लीट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विद इन 3 months. Okay, and let him, he started his work and he completed within 3.5 month. 3.5 महीने में उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया. बट सपोज इफ ही डिडंट कंप्लीट दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द गिवन डेट or given time, the most of the people of the Punjab province blame directly him कि जी he promised I will complete this project within 3.5 months, but 6 माह भी गुजर गए हैं and he didn't complete it. तो लोग बोरन बोलना शुरू कर देते हैं और एतराज करते हैं. इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर भी एज ए इंजीनियर promised with general manager कि I would complete this type of project, whatever the type of project, मशीन इंस्टॉल करना, मशीन की मेंटेनेंस करना, पंप लगाना, कंप्रेसर लगाना, कुछ भी हो, वो 6 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, 5 महीने का टाइम है. हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू प्रोजेक्ट मैनेज इट, हाउ टू टैकल इट, के सारे लवाजमात, सारी एक्टिविटीज के क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट भी अच्छी हो, टाइम लिमिट भी विद इन टाइम लिमिट मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँ, पैसे भी ज़्यादा ना लगें. तो सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में ये देखी जाती हैं और उस काम को फिनिश किया जाता है और फिर आप उसकी
क्लैपिंग लेते हैं या शाबाश लेते हैं, या आपको मीटिंग के दौरान आपकी तारीफ की जाती है कि जी ही इज़ ए गुड इंजीनियर, ही कंप्लीट्स हिज प्रोजेक्ट विद इन द टाइम एंड वेरी मच क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम। यानी अगर आप पैसे ज़्यादा लगा दिए हैं तो क्वालिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ख़राब होगा, क्योंकि वो कहेंगे जी टाइम लिमिट तो ठीक थी बट इसने पैसा बहुत खर्च कर दिया इस प्रोजेक्ट में, इंस्टॉलेशन में, वट एवर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। घर में अगर बड़ा भाई है और उसकी शादी करनी है अब्बू ने, तो वो अपने अपने बच्चों को या दूसरे, अगर घर में बहन भाई नहीं है तो वो दूसरे बहन छोटे भाइयों को कह देगा कि जी ये छोटा फंक्शन तुम कर लो, ये फलां कर लो, तुम इसको लुक आफ्टर कर लो। एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है जो 2-3 दिन घर में वलीमे का और शादी का चलता है, तो बड़े बिजी होकर सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं और अगर वक्त पर खाना ना मिले तो सारे के सारे शादी वाले घर पर ब्लेम लगाते हैं कि यार देखो हमें बुलाया और हमें वक्त पर खाना नहीं दिया। तो और फिर बंदा थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाता है कि जी ये क्या हो गया। तो एज ए इंजीनियर इसी तरह आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, डेली बेसिस पर आपको काम दिए जाएंगे। तो काम को कैसे हैंडल करना है, काम को कैसे कंप्लीट करना है, काम को कैसे क्वालिटी वाइज फुलफिल करना है, ठीक है जी, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, वो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में देखा जाएगा। दिस इज़ द 5th टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू डायरेक्टली सेशन नंबर 2015, सेशन 2016 टू सेशन 2017, सेशन 2018, सबको मैंने ये सब्जेक्ट लास्ट 4-5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। एंड नाउ दिस इज 15, 16, 17, 18, 19, 5th time. So your session is consist of 5th lecture from my side. लास्ट 4 ईयर से मैंने स्वीडिश में ही इधर ही पढ़ाया और 5-6 साल भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सो वी विल जस्ट डिस्कस द अवेयरनेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैंने पहले बता दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 5 मिनट्स का भी हो सकता है, 5 दिनों का भी हो सकता है, 5 हफ्तों का भी हो सकता है, 5 महीनों का भी हो सकता है, 5 सालों का भी हो सकता है और 50 सालों का भी हो सकता है। तो हाउ वी विल मैनेज इन द विल गुड मैनर, गुड फुलफिल कंप्लीट ऑल एक्टिविटीज, बिकॉज इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट दुनिया में चल रहे हैं। कोई ब्रिज बना रहा है, कोई इमारत बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई प्लांट लग रहा है, कोई प्लांट की इंस्टॉलेशन हो रही है, कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई इंडस्ट्री लग रही है। सो ऑल नोज द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके जी, व्हाट इज, अब आपको सबको ये ऑलमोस्ट अंदाजा हो गया होगा इस सब्जेक्ट का क्या फ़ायदा है। और ये हम एज ए इंजीनियर, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट में भी सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रिकल में भी सब्जेक्ट है और ये केमिकल इंजीनियरिंग में भी सब्जेक्ट है और ये अपना उसके बाद ये डिफरेंट टेक्निकल जितने भी इंजीनियरिंग की लाइन है उसमें सब में ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है और ये सबको पढ़ाया जाता है। तो बीएससी के बाद अगर कोई एमएस करना चाहता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस भी शुरू हो गया पाकिस्तान में लास्ट 2 ईयर से। तो क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, बाहर अपनी ज़ाती, प्राइवेट, गवर्नमेंट की, जैसे इमरान खान किसी मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है और उसको कहता है जी ये एक ट्रेन चलाओ, जैसे शेख रशीद ने अपने रेलवे मिनिस्ट्री के दौरान अनाउंस किया था कि चाइना ट्रेन वो बुलेट ट्रेन लेके आ रहा है और उस पर काम भी शुरू हो चुका हुआ है। तो वो एक प्रोजेक्ट है 6 ईयर प्लान का कि जी चाइना की कंपनी बुलेट ट्रेन का पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक अपनी रेलवे ट्रैक बिछाएगी। तो सारे इंजीनियर्स को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को कैसे डील किया जाता है और कैसे फुलफिल किया जाता है। Now, the basic definition of the project is a process consisting of a set of coordinated with control activities with start and finish dates. Right? कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने जिस पर काम करना है
वो एक तो सब कंट्रोल हो, आपके अंडर सुपरविजन में काम कर रहे हो और आपने एक डेट अनाउंस की हो और उसकी स्टार्ट की और फिनिश की डेट आप उसको बताई हो कि मैं ये काम इस डेट को स्टार्ट करूंगा और इंशाल्लाह इस डेट को फिनिश करूंगा, और मेरी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ कुछ लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ project to achieve an objective conforming to specific requirements of the project including time, cost, quality and resources। जारी बात है, जितनी भी ऑब्जेक्टिव इसमें लिखी हुई हैं कि मैं टाइम बाउंड हूँ, मैं कॉस्ट को भी मद्देनजर रखूंगा, मैं क्वालिटी को भी मद्देनजर रखूंगा और मैं रिसोर्सेज को भी मद्देनजर रखूंगा। क्योंकि रिसोर्सेज, अगर आप एक रिसोर्सेज में आपके लिए जो मटेरियल यूज करना है कि जी मैंने सीमेंट लगाना है तो कहाँ से कौन सी अच्छी कंपनी का लेना है, मैंने अगर कोई प्लांट लगाना है तो मैंने मशीनरी के लिए जो फाउंडेशन बनाना है उसके लिए जो फाउंडेशन सरिया और सीमेंट कहाँ से खरीदूंगा, कौन से स्किल्स पर्सन हायर करूंगा, किस मैनेजर लेवल के स्किल्स के लोग हायर करूंगा, उनकी एजुकेशन क्या होंगी, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप बड़े हाई एक्सपेंसिव लोगों को रखेंगे और एक महंगी सीमेंट की बोरी खरीदेंगे तो वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी। तो आपने लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करना है। टाइम बाउंड है, स्टार्ट और फिनिश डेट आपने दी हुई है, और कॉस्ट का भी ध्यान रखना है और क्वालिटी को भी मद्देनजर रखना है। तो ये आपका बेसिकली प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है। तो प्रोजेक्ट को अगर हम इसको we break in the different forms, the project is a plan, a set of activities। ठीक, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, इट मींस कि आपको फादर ने कह दिया है जी दोपहर का खाना 6 बंदों का तैयार करना है, तो आपकी सबसे पहले एक्टिविटी होगी, बाप से पूछेंगे कि जी डिशेस में क्या बनाना है, बाप कहेगा ठीक है जी चावल बना लें या चिकन बना लें, 2 चीज़ें। फिर आप दूसरी एक्टिविटी में उनसे पैसे लेंगे कि जी मुझे इतना चिकन चाहिए और चावल खरीदना है। फिर तीसरी एक्टिविटी में आप अपनी बाइक पकड़ेंगे और जाके चीज़ें लेके आएंगे। फिर चौथी एक्टिविटी में अगर तो कुकिंग आसानी से घर में हो सकती है तो फिर आप मदर को या किसी भी कुक को कह देंगे जी कुकिंग करें। तो और सातवीं एक्टिविटी में फिर इस तरह आप लोगों को वो सर्व करेंगे खाने के लिए, और फिर जब लोग अच्छा कहेंगे कि जी जी बहुत अच्छा खाना बना था और बड़ा अच्छा लिमिटेड टाइम में आप लोगों ने हमारा खाना अरेंज किया, कॉस्ट भी ठीक थी खाने की, कुक क्वालिटी भी ठीक थी। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज सारे प्लान के साथ आप लोगों को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे और आप फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैंने सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की हैं। अब जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने चिकन ठीक नहीं उठाया, चाहे जितना भी अच्छा कुक हो, तो वो उसकी उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अगर आप बाप ने पैसे थोड़े से दिए हों कि यार नहीं थोड़ा चिकन ले आओ, तो चिकन बन तो गया लेकिन अगर वो शॉर्ट हो गया एट द एंड तो भी लोग बातें करेंगे कि जी ये क्या हो गया। तो कोई भी एक्टिविटीज़, अगर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट एंड क्वालिटी, वो सब के सब आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। देन द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड फुलफिल कंप्लीटेड बाय द इंजीनियर। तो एक आप स्कोप रखते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट का ये मेरा स्कोप है, इसको मैं इतने टाइम लिमिट पे कंप्लीट करूंगा, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आएगी, इस क्वालिटी का मैं प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करूंगा और ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करूंगा। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, बातों बातों में ही समझ आ जाएगा। अब खाली प्रोजेक्ट की हमने बात की, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, the art of the organizing, the art of the leading, the art of the reporting and completing the project through people. If you are being an engineer, when you will join to industry, if you are selected as a project engineer, you should 100% confident about how to organize this project, how I will lead this project, how I will report to my bosses, and how I will complete this project given by my higher management। अगर हायर मैनेजमेंट में मुझे भरोसा करके मुझ पर ट्रस्ट करके ये प्रोजेक्ट दिया है, तो अगर इफ आई एम ए गुड इंजीनियर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को लीड करना, लोगों को अच्छी तरीके से रिपोर्ट करना कि जी ये आप काम करें, और फिर अच्छे तरीके से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए,
तो हम उसको कहते हैं कि ही इज़ ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, कि इसने प्रोग्राम अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया। तो ऑर्गेनाइज करना, लीड करके चलना, ये ना हो कि जी आप ऑर्गेनाइज बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बाद में बीच में आप लीड करना छोड़ दें, नहीं जी मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं नहीं कर सकता। तो लीडर भी होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर भी बनना पड़ेगा, अच्छी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। मसलन कोई मटेरियल आ रहा है, इनपुट मटेरियल आ रहा है और आप प्लांट बना रहे हैं, तो इनपुट लेट हो जाता है। वो जो सप्लायर है वो कहता है जी मेरा 2 दिन के लिए मैं एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, आपको मटेरियल परफॉर्म नहीं मिलेगा। कुछ भी हो सकता है ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट आपके साथ। तो उस प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हाउ टू मैनेज द डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आपको सप्लायर ने अच्छे तरीके से प्रॉपर रिपोर्टिंग दे दी है, आपने स्किल लेबर भी मंगवाई हुई थी और काम करने के लिए, अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता और 2 दिन के लिए डिलीवरी भी नहीं देता मटेरियल की, तो प्लांट की एक्टिविटी जो इंस्टॉलेशन की थी वो रुक जाएगी। तो आप उसी दिन आपकी लेबर जो है वो सेम फ्री बैठी रहेगी और वो लेबर का खर्चा पड़ जाएगा। तो रिपोर्टिंग करना भी सप्लायर के साथ और लोगों को तक पहुंचाना कि आज मटेरियल नहीं आ रहा, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, लीड करके चलना, ऑर्गेनाइज करना पूरे सिस्टम को, और फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ये कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो एज ए, दिस इज द लास्ट स्लाइड, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा? टेक ऑनरशिप ऑफ द होल प्रोजेक्ट। यस, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो यू शुड टेक ऑन, आपको ऑन करना चाहिए। इज प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, आपको पहले से हर काम तैयार करके रखना है, ना कि रिएक्शन दिखाना है। कोई काम खराब तो होना ही है, पाकिस्तान है, दूसरी जगह भी जाएंगे, सारे परफेक्ट लोग कहीं भी नहीं आपको मिलेंगे। लेबर लेट हो जाती है, लेबर की डिलीवरी लेट होती है, मटेरियल लेट डिलीवर हो रहा है, उसकी प्राइसेस, मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, मटेरियल महंगा हो गया, उन्होंने कहा जी अब हम आपको उस प्राइस में मटेरियल नहीं दे सकते। तो आपको रिएक्शन नहीं दिखाना, आपको प्रोएक्टिव रहना है, अपनी सारी की सारी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, बड़ों से बातें भी करनी है, हायर मैनेजमेंट से अप्रूवल भी लेनी है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मैनेजर कर रहा है। इज अथॉरिटेटिव एंड नॉट अथॉरिटेरियन, यानी आपके पास अथॉरिटी हो, ये ना हो कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर लगा दिया गया और आपके पास अथॉरिटी नहीं है। इज डिसिसिव, प्रोड्यूसिंग ए डिफाइंड रिजल्ट। डिसिसिव का मतलब कि आप जो भी काम करें एक डेफिनेट रिजल्ट प्रोड्यूस करें, कि मैं हर काम कर सकता हूँ, हर डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे पास हर किस्म की अथॉरिटी है, मैं हर किस्म के रिजल्ट का जिम्मेदार हूँ। इज ए गुड कम्युनिकेटर, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना है, लोगों अपने सप्लायर से भी बात करनी, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी लेबर जो काम कर रही है, आपके सुपरवाइजर जो अंडर सुपरविजन जो काम कर रहे हैं, सबको हर चीज़ कम्युनिकेट करनी है। आपको बड़ा सॉफ्ट होकर चलना है, आपने अपनी ज़बान का ख्याल रखना है, तो वरना प्रोजेक्ट किसी भी टाइम, अगर लेबर सारी की सारी आपस में यूनियन बनी हुई है और वो बाइकाट कर दिया, हड़ताल कर दिया, तो आपकी अपनी बदनामी होगी। तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना है। मैनेजेस द बाय डाटा एंड फैक्ट्स, आपको हर लम्हे हर सेकंड डाटा चाहिए मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ लोग आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, लेबर काम कर रही है, कोई लेबर वेल्डिंग कर रही है, कोई लेबर फाउंडेशन बना रही है, कोई लेबर असम्बल कर रही है, कोई लेबर, लॉट ऑफ टाइप ऑफ वर्किंग is doing in the plant when you start new plantation of any place। किसी भी जगह आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ डाटा चाहिए कि फाउंडेशन बनाना है, इसका ये साइज़ है, हाउ मच सीमेंट बैग वी नीड टू फुलफिल दिस फाउंडेशन, इसके क्या फैक्ट्स होंगे, क्या ये सीमेंट की जो रेशो चल रही है, ये कंप्रेसर जो उसके ऊपर फिट होगा उसकी वाइब्रेशन तो नहीं होगी, वट। तो आपको सारी फैक्ट्स एंड डाटा ईच एंड एवरी हर लम्हे आपको चाहिए होगी। लीड्स बाय द एग्जांपल, आपको इतना अच्छा लीड करना है कि दूसरे लोगों के लिए, सप्लायर के लिए आपको एक एग्जांपल क्रिएट करनी है कि आई एम ए गुड लीडर, डोंट वरी, आई एम अवेलेबल, इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। हैज साउंड जजमेंट, अब आपको जजमेंट करनी है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इट शुड बी कंप्लीट विद इन द डेट्स या और विद इन द टारगेटेड डेट्स, कि मैंने जो टारगेट डेट्स दी हुई थी उसके मुताबिक ये काम कंप्लीट हो जाएगा नहीं होगा, अगर देर आ रही है तो किस जगह गैप है, मैं उस चीज़ को
प्रोएक्टिव करूं और उसको जरा उसको रिएक्टिव दिखा के उसको जरा थोड़ी सी स्पीड अप करूं, ताकि मैं मेरी जजमेंट के मुताबिक कि इस पोर्शन में थोड़ा सा डिले आ रहा है जो कि प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप थोड़ा सा साउंड जजमेंट आपको करनी चाहिए। नासिर रेज्ड हैंड, हु इज नासिर? जी नासिर। हु इज नासिर मिस्टर? नॉट स्पीक। अगर आपने नहीं बात करनी थी तो रेज हैंड क्यों किया? जी। हैज इज ए मोटिवेटर एंड इज ए डिप्लोमेटिक। ये बड़ी बहुत अहम दो चीजें हैं। डिप्लोमेटिक भी कई दफा होना पड़ता है, ठीक है जी। और आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। अगर 2 दिन लेट प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, हाउ यू विल मोटिवेट टू योर स्किल्स पर्सन, टू योर लेबर्स। if the working style is very slow, you are looking forward कि within we have around 3 or 4 days to complete this project, but this situation where the labor is very slow, how I will push them to complete this project within 3 or 4 days। तो आपको मोटिवेट भी करना है, पुशअप भी करना है, और डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ेगा सप्लायर के साथ बेसिकली, या कोई ऐसे अफराद जो हु आर डिस्टर्बिंग डायरेक्टली यू ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सर मैं बीमार हूँ, मैं कल नहीं आऊँगा, तो आप उनको डिप्लोमेट बन के उनसे काम निकलवाना है, उनको डेली बेसिस पर उनकी अटेंडेंस प्रोजेक्ट में जो भी प्लांट में काम करने के लिए बुलाया गया है, उनको आपने किस तरह डिप्लोमेटिक वे के साथ उनको काम की तरफ लगाना है, और आप एक अच्छे मोटिवेटर भी हों ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। तो दीज आर द बेसिक मैनेजर रोल्स हु विल परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट management। if someone or if general manager or if higher management will give you any type of project in future, you should compete them, you should complete them, you should see all the quality matters, you will see all the different activities as a motivator, as a team leader, as a good organizer, then you will complete your project। अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम, आपकी जॉब भी जा सकती है, आपकी बदनामी भी हो सकती है। आपकी अगर आप एक दफ़ा किसी इंडस्ट्री से बुरे तरीके से फारिग हो जाएं तो मार्केट में बुरा हो जाता है और फिर दोबारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर की हायरिंग की जाती है, न्यूज़पेपर में काफ़ी आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री की जॉब्स जब आती हैं और वहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर मांगा जाता है, तो वो लोग ये बड़ी क्लियरली देखते हैं कि जी कौन किसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ताकि वो आने वाले हमारे कंपनी को व्हेन ही विल जॉइन एंड ही विल वर्क फॉर अस, तो ही शुड कम्पिटेंट एंड ही शुड कंप्लीट आवर फ्यूचर प्रॉब्लम्स विद इन द टाइम, विद इन द कॉस्ट स्ट्रीम, विद इन द क्वालिटी स्ट्रीम। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। पेपर कोई टेक्निकल इतना नहीं है, सब्जेक्ट कोई नॉन टेक्निकल है, और इसमें कोई बस सादा सी बातें होती हैं जो आपने याद रखनी है, ताकि आपको जब फ्यूचर में जब आपको कहीं मौका मिले एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम करने का, तो आप ये स्लाइड्स खोल के एक दफ़ा रिवील कर लीजिएगा। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर अपना पर्सनल नंबर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा, मैंने ऑलरेडी सारा लेक्चर से पहले हर चीज़ भेज दी हुई है। ओके सर। सीआर किधर है, मुझे ये बताएं। जी सर। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है।